कार्याणि न मनोरथ न ही सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। दैट मीन्स अगर आप केवल इमेजिनेशन करेंगे कि मुझे ये आंसर आता है, इसमें ये लिख लूंगा या लिख लूंगी, तो वो होगा नहीं. You need to put the efforts. So this workshop is to ask you to put your efforts on the paper. Please write. I request each and everyone sitting from that corner to this corner, even though you have less space to write, but please write. It is very important to write. This examination wants you to write, and your evaluation is also done by writing. You have the results here. जिन्होंने लिखा है वो यहाँ पर है. If you want to be there, try practicing that. So without engaging myself more, I would like to request Khan sir to have his words of wisdom to explain you something related to writing skill, since he has more than 3 decades of experience. So I believe I haven't seen anyone more saner voice with respect to the answer writing. So this workshop is dedicated to the man who invented it, Dr. A.R. Khan sir. I want you to be here and... Good afternoon, everybody, and all those who are watching us in different rooms. Thank you for the patience and then logistical issues that we can't make you sit, all of you together. But we are reaching live to all of you. Additionally, since this is Samvad, which has been, has to be both ways, it can't be like one way. And we would like you to have questions, and we would like to answer. No, they would like to answer, and even if they don't like, they will answer. I can promise you that. I suppose I'm the most frequent person who comes here. I love the city. I love the place. आता रहता हूँ मैं किसी न किसी बहाने से, and keep meeting you. Today I like the dais should be actually engaged by the power couple that we have here, and they definitely would like to give you all what they have acquired to get there. In fact, it's to me it looks like yesterday when she would walk into some classroom like this, and since she was coming most of the time from the college in her college attire and college dress, and she would not find a place to sit. I used to call her Alice in the Wonderland. She was like, where is the seat? So बिल्कुल तुरंत हो जाता है सब कुछ, and सब कुछ बहुत जल्दी बदल सकता है. And I suppose एक चीज जो जरूर ध्यान रखें, एंड वो शायद केसी में हम लोग बहुत ज्यादा उस पर ख्याल करते हैं कि राइटिंग एक कला है, इट्स अ स्किल, एंड देन इंफॉर्मेशन एंड स्किल में फर्क है. इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन. आई कैन गिव यू इंफॉर्मेशन एंड यू हैव दैट इंफॉर्मेशन. द प्रॉब्लम विद स्किल इज दैट हैज टू बी एक्वायर्ड. आपको अक्वायर करना होता है. कोई भी स्किल ट्रांसफर नहीं कर सकता है. कोई भी आपको साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता है. Nobody can teach you swimming. You have to acquire that, and the only way you can do is by falling a few times. Only way you can do it by drinking some dirty water. कुछ गंदा पानी पिएंगे, फिर तैरना आपको आ जाता है. गिरना पड़ता है, करना पड़ता है. KG में we take pride in ensuring that we are around. We are holding the cycle from the back. You remember somebody, कोई भैया या कोई दीदी या कोई ऐसा कोई होगा आपको जो साइकिल, वी आर लाइक दैट. वी वुड बी देयर विथ यू. एंड आई लाइक टू मेक इट वन थिंग वेरी क्लियर. दिस इज नथिंग टू डू विथ एनी मार्केटिंग और एनीथिंग लाइक दैट. इस सेमिनार नहीं है. आई थिंक आपको शायद एहसास हो गया होगा. आज भी आपसे हम कुछ लिखवाना चाहते हैं, because there are some small correction which happens that goes on to build who you ultimately become. But the only handicap that KG has in this regard is that it cannot do it unless you have done it. And it has to be very individually curated. आप दो लोग आंसर लिखते हैं, 10 नंबर के आंसर में दोनों को 4 मिलता है, दोनों को 6 चाहिए, दोनों को एक एडवाइस नहीं दिया जा सकता. And the only way we can reach you individually is when you write answers. Otherwise क्लास में एवरेज पे ही हमेशा बात होती है. आप हमेशा या तो एवरेज से नीचे होते हैं या एवरेज से ऊपर होते हैं, और क्लास एवरेज के अलावा कहीं हो नहीं सकती है. तो आपको क्या ज़रूरत है, इसकी पहचान हमें आपके आंसर राइटिंग से होती है. और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे आंसर राइटिंग के.
कोचिंग के बाद भी लोग लिखते रहते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट. वी आर नोन इन द कंट्री फॉर गाइडिंग यू इन आंसर राइटिंग. और यकीन मानो जितना हम गाइड करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको खुद के लिखने की. और जिस दिन ये आइस ब्रेक हो जाता है आपके लिखने का, आई सपोज द फ्लो स्टार्ट्स. बट शुरू में you try hitting, nothing comes out and you feel like, hey, there's nothing there. But there is a flow which is waiting to come, provided you keep on hitting on the same point. और करते रहे तो हो जाता है, और वो उस जगह तक आपको जाना पड़ेगा. एंड आई थिंक KG विल बी अराउंड टू डू इट. ऑफ कोर्स आप जैसे चेहरे मिल जाते हैं तो रुका नहीं जाता, इसलिए बोलता रहता हूँ. आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल नॉट स्पीक. आई वुड रादर लाइक टू आस्क द young officers to speak to you, share their own experience. You have a lot of questions in your mind. You would like to ask them, and they'll be happy guiding you through that. Please feel free to do that. And then those people who are sitting in other rooms, I have requested them, and they have kindly agreed that they would go physically to those rooms and then have those questions taken from there. So those who are watching us in other rooms, please see this first part as together. Otherwise, we would have those special question answer sessions will be taken there. Samvad will happen. And I would also insist all of you to make good use of this presence here by submitting your answers. We would love to evaluate that. There's no commitment from your side. You just submit it, we'll evaluate it and get down to some pointers to let you know as to, hey, there is some issue that you can possibly improve. And then gradually you start walking towards our goal. Thank you very much for being so patient, and God bless you all. Thank you. Thank you, sir. There are 3 questions there. 3 questions हैं, and I have requested the officers to discuss on that since they have practical experience. तो बच्चों में ये देखा जाता है कि case studies से थोड़ा डर लगता है, मतलब they shy away from writing the case study. So case study बहुत important part रहता है, आपको आपके अंदर जो ethical instincts होने चाहिए उसको develop करने के लिए. So I have requested both the officers to speak a little bit on the questions. तो कुछ वो बात करेंगे. तो यू कांट से दिस कि हमको नहीं पता कैसे लिखना है. दे आर गोइंग टू टेल यू. तो आपको लिखना है. सर ने भी बोला है. आई एम रीआइटरेटिंग द सेम थिंग अगेन. एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर अर्जुन सर टू प्लीज कम ओवर एंड शेयर हिज वर्ड्स. Thank you. Am I audible? So now should I discuss the question first or? Okay, fine. Okay. Hello everyone. So I was आपकी सृष्टि के लिए रेडी होता है, कहीं ऐसा सरप्राइज कि आई वाज. So it's very मतलब we feel very happy to interact with students like you because we were also few years back. It's not long time ago. Only few years back we were sitting there. I remember attending my first seminar when I had just finished 12th standard. So I attended my first UPSC seminar in Bangalore. So just to get an idea of what this exam really is. So since then it was maybe I did my MBBS, and after that only I started preparing for civils. But I had made up my mind to a bit ki okay, I will go into civils. So I can see myself in you guys now. So and you can see yourself here in few years, I suppose. So with that, let's come to the main point today. The answer writing के बारे में है this session. So I would just stress on how and why answer writing is very important. So a brief description I'll give कि क्यों करना है. So जैसे कान सर बता रहे थे कि answer writing plays the most important role यहाँ पे. So for you to make any difference, it's all about every single question. तो आप every single question में it's just that half mark which you score more than others. This is a competitive exam. So it's not like your degree exam की जहाँ 50% score कर लिया, पास हो गया, बस ऐसे नहीं. So यहाँ पे you are competing with others. यहाँ पे every half mark and every 1 or 10 minutes of effort matters. So that is where answer writing practice comes into picture. So this is the I think सबको पता है कि this is the most important thing, but सबको ये भी पता है कि this is the least practiced thing. Because it takes some effort कि आपको बैठना है, लिखना है, 4-5 क्वेश्चन लिखना है, पढ़ना है. So and also you will be feeling underconfident when you start writing answers. That is where most of at least 80% of you will stop. So your
मोस्ट ऑफ द मतलब 80% ऑफ यू विल स्टॉप व्हेन यू स्टार्ट. तो ऐसे ही मे बी आई वॉज ऑल्सो देयर, बट आई वुड से दैट इट शुड नॉट बी लाइक दैट. सो इट इज दोज 20% who will उसमें भी till end who will put that effort. So every day, every single day, so gather yourself, you sit down and you do put in your effort, and that's how you start improving. So that's how it should be, the process as well. And there is no good time or bad time to start answer writing. So I would say once you have finished a basic reading, maybe a NCERT and standard books, at least the एक reading if you have finished, so that is the right time when you should start. So you should not wait till the end. So बाद में करूँगा, after I revise I'll do, now I don't know anything, so or I might have forgotten this, I might have forgotten. That's just a reason which you are giving to yourself, which you should not be doing. As I told, this is what makes the difference. You sit down and start writing the day when you finish at least one reading of the whole syllabus. Whole syllabus in the sense NCERT and standard books, that's enough. So you cannot complete the syllabus, and there is nothing as such like syllabus UPSC में. ठीक है, मेंस में फिर भी there is overlap and most of the times they repeat the topics at least, if not the question. So they focus on at least 80-90% to 70% of the questions will be on the same topics like previous years. So मेंस में, but there is nothing like syllabus की जैसे इंजीनियरिंग में होता है कि 8 यूनिट होता है, 5 यूनिट पढ़ लिया तो हो गया इंजीनियरिंग. तो ऐसे कुछ नहीं रहता है यूपीएससी में. So you'll have to prepare in general. So in general you have to prepare and put forward your thoughts in the paper. So this is how it is. And with that I would finish की importance इतना ही है. So and Srushti will also talk on the same topic, and those who are in the other classes as well. So we'll try to come there, as there are five rooms, I think so. Yeah, there are 5 rooms in the whole building. So we'll come everywhere. So we'll try to address your questions, as this is a Samvad. It's about interaction. So we'll be very happy to address your question. It might be any simplest of the doubt. So please come forward to ask it. So don't feel ashamed of कि पूछना है कि नहीं. That's how you prepare for your interview as well. One more very important thing which I would want to tell everyone, एक suggestion बस. This is what I have done. So right from the day you have started preparing, you should feel like an officer, that you are an officer now. So you have not cleared this exam, but still you should feel inside that you are an officer. किसी को बताना नहीं है कि मैं ऑफिसर हूँ, तब तो वो it will become a sign of delusion. We call it delusion. तो जब आप किसी को बताएंगे तो मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मैं समझूंगा कि अच्छा इसको थोड़ा हेल्प का जरूरत है. तो बट यू शुड फील दैट इनसाइड. So that is when you can actually find the solution for your questions. So ये सारे जो भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आती है ना, so आपका एक बेसिक बैकग्राउंड रहता है, नॉलेज which you have gathered by preparing, and उसके बाद then there are situations based on what you should be answering. ठीक है, so background knowledge तो सबके पास होता है. So the innovative ways or the innovative thinking or multi-dimensional thinking कैसे आती है? So that is when you observe things like an officer. ठीक है, so जैसे अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है, आई थिंक कल परसों बारिश कल हुआ था, मुझे ऐसे बता भी रहे थे कि ओले भी गिरे थे और वॉट एवर. मेरा थोड़ा जेंडर का इश्यू है, तो डोंट माइंड. तो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग दैट लाइक एन, इफ यू आर अ कॉमन मैन, तो यूल जस्ट सी कि अरे बारिश हुआ, अच्छा हुआ मौसम, चाय पकौड़ा ले लेते हैं. So but as an aspirant or as an officer, you should think why it is, ओले कब गिरते हैं, what is when does it मतलब rains में जब कब ओले गिरते हैं, and what are the reasons and what are the types, and ऐसे सोचना चाहिए. At least when you have a knowledge, you should at least think in your own mind कि then it is a revision. At the same time you see some problem, there is some कहीं पे clogging हुआ है सीपेज का, so then वहाँ से पानी बाहर आ रहा है, तो what can you do about it? It's not like कि you should not complain कि म्यूनसिपालिटी कुछ काम नहीं कर रहे, लोग कुछ काम नहीं करते, सरकार के लोग, ऐसे नहीं होता है. So you should start thinking कि what you can do about it. So that is when you start finding answers. So that is what is required in this exam, कि आपको आंसर लिखना चाहिए, and you should think in a different perspective. That's what I think इस क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव और डायमेंशंस के बारे में मैं क्वेश्चन देख लूंगा पहले, उसके बाद हम बात करेंगे.
ठीक है. So how different can you think, and how what are the varieties of thoughts which you can put forward in your answers? That matters a lot. ठीक है. So with that I will give Sushti, I'll pass on the mic to Sushti in Molafi. Thank you. Thank you, Dr. Sahab. I think he said very rightly that you need to think about like an officer. People will enjoy, but if hailstorm comes, farmers, it's a plight of the farmers. So you need to think about that. You see, if you go and find out, this is a world of information. You will find out lots of videos, lots of information. But skilling is something which you need to do it by yourself. You know, like nobody is going to do it for you. And here, under the leadership of Khan sir, we try to focus a lot on skilling. So those who have registered with the KSG, they might be knowing about daily answer writing practice and those all stuffs which you are going through it. And that is fruitful actually. उसके हमको कुछ results दिख रहे हैं, कुछ results सामने हैं और कुछ results बहुत शानदार हैं. मतलब जो सृष्टि के नंबर थे अपने 2018 वाले परीक्षा में, वो देश में बहुत मतलब GS में सबसे ज़्यादा थे. तो ये एक्सीडेंट नहीं होता है. जैसे मैं बार बार कोट करता हूँ कई बार क्लासेस में भी एरिस्टोटल को कि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायोका, अ हाई इंटेंशन. आप सबके इंटेंशंस हाई है इसलिए आप बैठे हो. सिविल सर्विसेज सोचना बड़ी बात है. सेकेंड इज हाई इंटेंशन, देन हार्ड वर्क, सिंसियर एफर्ट्स, हार्ड वर्क चाहिए, एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. बिकॉज सक्सेस इज नॉट अ चांस, सक्सेस इज नॉट अ चॉइस, सॉरी, इट्स अ चांस. आपने चांस लिया इसलिए आप सक्सेसफुल हैं. आप सबके हाथ में ऐसी चीजें हैं जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं. पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, एंड वी आर सीइंग सम एग्जांपल्स हियर. And I would like to ask Shushti to take over the dais, and with her orientation introductory, we'll start the संवाद as well. वो वहीं से आपसे बात भी करने लगेंगे. Please come. I will really request you to put your phones down. It makes me a bit uncomfortable despite it being so many years. है ना? तो it's not very मतलब इतनी बार खड़े होके I have given so many sessions, I've talked to so many students across platforms, but the feeling to stand in front of a group of people staring at you is tough, and especially when they take out their phones even after you've requested them, it's tough. So thoda sa, just a small thing. Hi everyone, good evening to all of you. To all of you who are watching me in the different classrooms, and we'll really come to you and talk to you directly. So first of all, thank you Khan sir for giving me an opportunity to interact with you. It's always a pleasure to come back to aspirants, and क्योंकि जैसे खान सर याद दिला रहे थे और सर मेरी भी मेमोरी ताज़ा हो गई. मैंने जब KSG का बैच भोपाल में ज्वाइन किया था, तो मैं LNCT में पढ़ी हूँ. तो मैं कॉलेज से, माई कॉलेज यूज्ड टू गेट ओवर एट से आई थिंक सर 4:30. I used to board the bus. It used to take me 1 hour from my college to MP Nagar, which is the area where the coaching is situated. And I didn't have the time, and the classes used to start at 5:15. So I didn't have the time to go back home, change, and do all that. So my mother used to come with a scooty at the corner of the Chetak Bridge. She used to bring me a bottle of water, and I used to carry my bag and bottle, और वही white uniform में LNCT कॉलेज के, अगर आप में से कोई LNCTN है तो समझ सकता है, उस टाइम पे वो ग्रीन वाला जैकेट भी नहीं हुआ करता था. तो वाइट सलवार कुर्ता में आई यूज्ड टू गो, एंड जैसे सर ने कहा, यूज्ड टू फाइंड अ प्लेस बिकॉज क्लास यूज्ड टू बी फिल. 5:30 मैं पहुंचती थी, तो कहीं कोने पे चेयर वेयर खींच करके, और फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बन गए, तो दे यूज्ड टू कीप द सीट फॉर मी. सो दैट वाज देयर, एंड आई यूज्ड टू कोप अप विद द 15 minutes ऑफ क्लास दैट आई मिस्ड. ऐसा एकदम फ्रेश हो गया दिमाग में, और ये भी फ्रेश हुआ कि जैसा सर और अंशुल सर भी बात कर रहे थे, इंटेंशन आप लोगों ने जताया है. द फैक्ट दैट यू गाइज आर हियर शोज दैट यू हैव एन इंटेंट टू क्रैक दिस एग्जाम, बट इट टेक्स अ लॉट मोर, एंड दैट इज persistent efforts and the confidence that you can do it. So if I and Nagarjun could do it, definitely that is one fact that we want to drive home in you, कि आप लोग भी कर सकते हैं,
एंड इट इज़ ऑल अबाउट द फैक्ट कि एक बार जब आपने ठान लिया है तो फिर आप इक्विवेलेंट एफर्ट्स उसमें लगाएं और पूरी मेहनत करें. एंड दैट इज़ वेयर क्लासेस लाइक KSG विल हेल्प यू आउट इन गाइडिंग यू. यू नो द पाथ इज समथिंग जो आपको ही उसमें चलना है ना. सर को एग्जाम नहीं देनी है. किसी भी फैकल्टी आर हियर टू गाइड यू. दे आर नॉट देयर टू, यू नो, दे आर नॉट वॉकिंग द पाथ. यू आर द वन हु इज वॉकिंग द पाथ. दे आर देयर टू शो यू कि कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, स्ट्रेट जाना है, क्या करना है. सो दे आर देयर फॉर यू. तो इस चीज़ का भरपूर वी हैव टू, यू नो, टेक एडवांटेज, टेक बेनिफिट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव फैकल्टी मेम्बर्स एंड सर, गाइडेंस लाइक सर. सर इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्सूड करते हैं हमेशा whenever आप उनसे मिलेंगे. एंड दैट इज़ नॉट जस्ट बिफोर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन ऑल्सो. मैं जितनी भी बार उनसे मिलती हूँ, आई स्टिल टेक दैट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम हिम. So coming to the content of the session, it is about answer writing, right? As Arjun was telling that answer writing is, I feel personally, it's the most important part of this examination. After you have cracked your prelims, the one thing that determines your rank, your cadre, your service, it is going to be the marks that you secure in your mains examination. And mains examination is all about answer writing. Now, आंसर राइटिंग के 3 चीज़ों की मैं बात करूँगी. आपके पास क्वेश्चंस भी हैं एंड यू आर टोल्ड दैट आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे, राइट? तो एक बार बेसिक ब्रशअप कर लेते हैं कि आंसर में क्या एसेंशियल होता है और क्या नहीं. सबसे पहले तो किसी भी आंसर को लिखने के पहले आप क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन, यस. अब यूपीएससी में आंसर लिखने में और हमारे किसी भी अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत अंतर है. यूजुअली व्हाट वी डू इज स्पेस देखा कि कितना स्पेस लिखना है, क्वेश्चन पढ़ा, मार्क्स पे नज़र डाल दिए 5, 10, 15, 20 और उस हिसाब से पन्ने भर दिए और फिर मार्क्स आते हैं, आ गए. मेरे वैसे ही आए हैं बहुत सारे मार्क्स, तो मार्क्स आते भी हैं, आए भी हैं, आपके भी आते होंगे. बट यूपीएससी आंसर राइटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आपने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि यू नो आई हैव लर्नड अबाउट हाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड, लोकसभा, राज्यसभा, एवरीथिंग. आपने वो पॉलिटी का सेक्शन बिल्कुल दिमाग में क्लियर करके रखा है. बट देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स. तो आपको प्रैक्टिस करके धीरे, और एकदम से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे वो जो डिस्टेंस है ना कि मुझे ये आता है लेकिन क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेड है लिखना, वो आपको गैप फिल करना है धीरे धीरे. और जिस दिन आप मतलब उस लाइन पे पहुंच जाते हैं कि जो डिमांड है क्वेश्चन की आप वो आंसर कर लेंगे तो आपके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे. बट दिस टेक्स टाइम. सो लेट मी टेल यू दैट प्रैक्टिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू. और प्रैक्टिस करने के पहले वो राइटर्स ब्लॉक जो होता है कि हम नहीं लिखते, हमें लगता है कि नहीं यार पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ लिया, जैसे हमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, फिर हमने रेफरेंस बुक पढ़ लिया, कोचिंग के नोट्स भी पढ़ लिए, फिर भी लग रहा है कि नहीं यार ये टॉपिक मेरा इनकम्प्लीट है, तो आई विल नॉट राइट द आंसर. दैट इज वेयर थिंग्स लाइक पावर राइटिंग, थिंग्स लाइक द करंट इशू राइटिंग प्रैक्टिस विल हेल्प यू, बिकॉज फ्रॉम डे 1 हियर यू आर यू नो मोटिवेटेड टू राइट. तो भले ही कितना भी गंदा आप लिख रहे हो, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दीज क्वेश्चंस, है ना. आप मान करके चलो कि आपके पहले 50 आंसर्स जो हैं वो एकदम गंदे होने वाले हैं, आप मान करके चलिए. क्योंकि कोई भी, जैसे सर बता रहे थे कि इट इज नॉट एन इन्फॉर्मेशन कि ऐसे आंसर मतलब लिखना है, इट्स अ स्किल एंड एनी स्किल नीड्स टू बी डेवलप्ड, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. तो आप मान करके चलो कि मेरे जो 50 आंसर्स हैं दे नॉट गोइंग टू बी गुड, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट दोज 50 आंसर्स, ओनली देन योर 51st आंसर विल टर्न आउट टू बी something better than what your first answer was. So first thing is understanding the demand of the question. In order to do that, read the question twice. कोई भी क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़िए और हर क्वेश्चन में ना आइडेंटिफाई करिए कि क्या एक बैकग्राउंड थीम है जिसकी बात चल रही है. आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा है, आप मुझे GS1 का कोई एक थीम बता सकते हैं? कोई भी? हाँ, ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्रॉड थीम इन GS1, करेक्ट. सो एक ये थीम हो गया, और लेकिन थीम और क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, दैट इज लाइक अ फोकस पॉइंट. एक कोई बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा होगा. तो बैकग्राउंड थीम तो ठीक है, एक बैकग्राउंड रहता है, बट आंसर जो मेन जो आर्ग्यूमेंट्स हमें देने हैं उस क्वेश्चन में, दैट विल डिपेंड ऑन दी
फोकस पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको बैकग्राउंड आइडेंटिफाई करना है, एग्जैक्टली क्या फोकस पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करना है, और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आंसर में होती है उसका डायरेक्टिव, कि उन्होंने क्या पूछा है। हैव दे आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन, हैव दे आस्क्ड यू टू आर्ग्यू, हैव दे आस्क्ड यू कि इलैबोरेट या एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, राइट। These are the question directives, the keywords जो आप अपने फैकल्टी मेंबर से और अच्छे से फाइनल डिटेल ले सकते हो कि इन दोनों में, तीनों में आंसर करने में क्या डिफरेंसेस हैं। बट ऑल दीज डायरेक्टिव्स दे हैव अ वेरी फाइन डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके देन यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब उसके बाद एनी आंसर का अगर आपको देखना है तो 3 पार्ट्स में आई विल टेल यू। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर, सेकेंड इज द कॉन्टेंट एंड थर्ड इज द प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी आंसर का? बेसिक स्ट्रक्चर यू नो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, आपको थोड़े थोड़े बस हिंट्स दे रही हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन है तो आप किसी भी आंसर में लिखते टाइम बैकग्राउंड को उठा सकते हैं। बैकग्राउंड कैन बी योर इंट्रोडक्शन। जैसे अगर ग्लोबलाइजेशन पे बात हो रही है, आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करके अपना आंसर शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो उस फोकस पॉइंट के बारे में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर ग्लोबलाइजेशन के ही बारे में लिखते चले गए। जो पर्टिकुलर पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसके आर्ग्यूमेंट्स को आपको इलैबोरेट करना है, कहाँ पे? बॉडी में। उसके बाद एक और चीज होती है, किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन के हर जो पार्ट है उसको कितना वेटेज देना है। कई बार लिखा होगा डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, इलैबोरेट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन यूथ। तो आपको डिफाइन ग्लोबलाइजेशन आप कितना करोगे? इंट्रोडक्शन में और थोड़ा सा और। अगर 10 मार्कर है, 2 पेज आपके पास है, पूरा 1 पेज आपने डिफाइन ही करते रह गए, तो जो सेकंड पार्ट है जहां पे आपको आर्ग्यूमेंट्स देने थे, जहां पे आपको नंबर मिलने थे, वो मिस हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्वेश्चन के हर पार्ट को कितना वेटेज देना है, तभी क्लियरली आप उसको स्ट्रक्चर कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वाज व्हाट? कंटेंट। कंटेंट इज द बैकबोन, राइट। कंटेंट इज व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट। तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले होगा इसमें इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज हाउ यू गैदर योर इन्फॉर्मेशन। और उसके ऊपर होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में आप डिमेरिट्स, मेरिट्स, फॉर, अगेंस्ट, दोनों चीजें। अब जैसे डिस्कस है, व्हाट डू यू यूजुअली डू इन अ डिस्कस वाला डायरेक्टिव? व्हाट डू वी डू? प्रोज एंड कॉन्स बोल रहे हो क्या? प्रोज एंड कॉन्स एंड देन वे फॉरवर्ड, अ कंक्लूजन और समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आपके जो कंटेंट है उसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दैट कब डेवलप होंगे? जब आप ज्यादा रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर एंड करंट इश्यूज। सबसे ज्यादा आपके GS2 और GS3 के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, दैट आर गोइंग टू बी अ लॉट फ्रॉम योर करंट अफेयर्स। तो कीप अ वेरी गुड आई ऑन द करंट अफेयर्स। जैसे नागार्जुन एग्जाम्पल वॉज वेरी एक्सीलेंट, दैट्स व्हाट खानसर एंड आई जस्ट रिमार्क्ड कि ये बहुत जरूरी है। जैसे आपके हेल स्टॉर्म हुआ है आपके यहाँ पे, तो लेमैन की तरह हेल स्टॉर्म कर लिया, हो गया, खत्म नहीं। जस्ट फाइंड आउट व्हाई एग्जैक्टली दैट हैपेंस, फाइंड आउट कि उसका ज्योग्राफिकल फिनोमिना क्या है। हो सकता है दैट इज अ क्वेश्चन इन GS1 जो आपका आ जाए। तो कीप एन आई ऑन द करंट अफेयर्स। जैसे COVID-19 वॉज देयर 1 or 2 years back, तो उस टाइम पे a lot of questions came about how that impacted the families, how that impacted the work culture. So keep a good eye on the current affairs. A lot of your GS2 and 3 questions will come from there. And final part of answer writing is your presentation. अब हम सब same books पढ़ते हैं, right? We all read the same newspaper, we all read the same books. So how do you make sure that your copy shines out differently? Because the examiner who's checking your copies, he's reading the same answer from so many different people. And mind you, a lot of the students, जितने भी लोग हैं आज हमने qualify किया है, a lot of people who would have given the exam with us might have more knowledge than us. But what made the difference? Maybe 1 or 2 things, 1 or 2-3 things which we would have given extra in the answer, जिससे हम आधा या 1 मार्क एक्स्ट्रा खींच लिया होगा हमने। तो that is 1 or 2 marks जो आपका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एंड प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आप क्विकली इंडिया का मैप ड्रॉ करना सीख सकते हैं। कई बार ज्योग्राफी में या GS3 में भी कई बार आप इकोनॉमी सेक्शन में जल्दी से मैप ड्रॉ करके इंडस्ट्रीज या ऐसी चीजें बता सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लो चार्ट आप सीख सकते हैं, कुछ अपने रेडी रेफरेंसेस बना के रख सकते हो कि अगर ये टॉपिक है तो दिस इज अ फ्लो चार्ट दैट इज रेडी विथ मी, तो क्विकली आपका ये टाइम भी सेव करता है और आपके यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन भी एनहांस करता है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं फॉर प्रेजेंटेशन, एनी आइडियाज? यस, डेटा स्टैटिस्टिक्स. सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड सॉल्ट ऑफ आंसर राइटिंग. एंड सॉल्ट कैसे यूज करते हैं हम किसी भी जगह पे? स्वादानुसार. बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दिया तो नहीं, डाला तो भी मजा नहीं आएगा. तो दीज आर द थिंग्स विच हैव टू बी यूज्ड वेरी स्पैरिंगली. ओके, डेटा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं. हम उस दिन भी लास्ट सेशन में भी इसकी बात कर रहे थे. इंटरनेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो रहता है, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आपको डेटा स्टैटिस्टिक्स अपने इसमें कोड करना है. दैट रियली एनहांसेस द प्रेजेंटेशन एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर. So this was just a brief about how do you, I think it was a long brief about how to write an answer. Iske baad I think they'll attempt the answer and then we will take your questions. Thank you so much. Thank you so much, Shrishti. I mean, your remarks are very, your remarks are very helpful for the students. क्योंकि ये एक सृष्टि ने बहुत अच्छी बात बोली है स्किल्स के लिए. मैं दोबारा उस पर दोहराता हूँ. स्किल एक ऐसी चीज है विच यू कैन अक्वायर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर होती है. बहुत कम लोग होते हैं, मतलब मैंने तो एक ही देखा है कैरेक्टर अभिमन्यु, जिसको अपनी मदर्स वूम के अंदर स्किल आ गया था. बाकी इंसानों को बाहर आके एक्वायर करनी पड़ती है. तो अगर अपन इंसान की श्रेणी में हैं तो कोशिश करें कि एक्वायर करें. और जो अर्जुन सर ने और बहुत ही अच्छी बात दोनों ने एक चीज को पिकअप करा है कि लेमैन की तरह मत सोचें, आप ऑफिसर की तरह सोचें ना. लेमैन के लिए ओला गिरा, उन्होंने कहा चलो खा लेते हैं, चोट लगी है लगा लेते हैं. तो यू मस्ट थिंक अबाउट द फिजिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल पैरामीटर्स. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं. वी आर गिविंग यू टाइम. आपने अभी इतनी देर सुना ना 3, कुछ लोगों ने लिखा भी कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, प्रेजेंटेशन है. आप लिख के देखिए. दीज ऑफिसर्स विल कम बैक एंड शेयर किस पे क्या आंसर होना चाहिए था. नहीं तो चीटिंग हो जाएगी ना. यूपीएससी चीटिंग करने को थोड़ी बोलता है ना. तो वील कम बैक एड्रेसिंग द Q&A. Second and third. We'll come back in few minutes. Yeah, okay. We are coming in 10 to 15 minutes. We are going to take the Q&A there. तब तक आप लिखिए, फिर वहां पे वो लोग लिखेंगे एंड देन आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है दे विल ऑल्सो डिस्कस द आंसर्स एंड यू कैन टॉक अबाउट दैट. सो प्लीज राइट, है ना. ऑल द बेस्ट. So we'll quickly discuss the question number 2. Question number 2 क्या है एक बार पढ़ेंगे. Discuss the role of the family as a focus on the word social institution. है ना, कोई अलग कीवर्ड बोल रहे हैं ना, social institution. इन इंडिया इसको भी हाईलाइट करो. इन इंडिया को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं हम? ताकि हम एग्जैक्टली समझ सके कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है. मतलब मुझे इसमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं, मुझे नहीं बात करनी कि यूएस में सोशल इंस्टीट्यूशन में रोल ऑफ फैमिली क्या होता है. मुझे बात करनी है कि इंडिया में क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा है? इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉमा, एक्सप्लेन हाउ द structure and functioning of families evolved over time. Second part of the question में कहीं इंडिया दिख रहा है, तो मतलब the floor is open for examples from all around the world. Now इस question में कितने parts हैं यार? कितने parts हैं? 3 parts हैं. 3 क्यों? सब पार्ट हो गए. वो क्वेश्चन के पार्ट्स 2 ही हैं, सेकेंड पार्ट के 2 सब पार्ट्स हैं. ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्कस. डायरेक्टिव क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. हाउ विल यू ओपन दिस क्वेश्चन? जस्ट शूट, जस्ट थिंक. आपने कैसे ओपन किया इस क्वेश्चन को? डिफाइन द सोशल इंस्टीट्यूशन, डिफाइन द फैमिली. और सोशलॉजी वाले होंगे तो सोशल इंस्टीट्यूशन जानते होंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है. लेकिन जो सोशलॉजी वाले नहीं भी है, वो भी 11th-12th की एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो उसमें इतना बेसिक रहता है जानकारी. इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12th की. उसमें बेसिक सोशलॉजी, सोशल इश्यूज रहते हैं.
तो वो पढ़ना है, आपको पता रहेगा कि सोशल इंस्टीट्यूशन, ओपन वहीं से करेंगे, ठीक है। रोल बताने के लिए पहले फैमिली या एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है ये 2-3 लाइन में बता दिया, उसके बाद क्या करोगे, लेकिन फोकस पॉइंट क्या है, रोल ऑफ फैमिली पूछ रहा है कि रोल क्या है, तो बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली। और ये कह रहे हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन और इनकलकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, कहीं से और इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट, करेक्ट। सब पढ़ के आए हो यार, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। सो माय पॉइंट इज कि पहले सोशल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना ब्रीफली इंट्रो में, उसके बाद आना रोल ऑफ फैमिली पे। सब पॉइंट यहाँ पे ना ऐसे लिख करके रोल ऑफ द फैमिली अंडरलाइन कर सकते हो। सो आपको भी क्लियरली समझ में आ गया कि अब मैं क्या लिखने वाली हूं, और ये है एक्स्ट्रा, हाँ, आपको भी समझ में आ गया कि आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं। एग्जामिनर ऑल्सो नोज कि अभी रोल ऑफ फैमिली की बात करने वाले हैं, ठीक है। रोल ऑफ फैमिली में आप अलग अलग जो उसके रोल्स होते हैं फैमिली के, कि एक वो आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी नहीं भी तो भी सोशलाइजेशन आप लिख सकते हैं इन जनरल, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज एक्सपेक्ट नहीं करता है यूपीएससी GS 1 में, सोशलाइजेशन लिख लिया उतना काफी है। सोशलाइजेशन मतलब कि आप आसपास जो चीजें, मतलब इट्स बेसिक, ये आपके बेसिक सोशल इश्यूज किसी भी एनसीईआरटी में आप समझ सकते हो। फिर किसी ने बताया कि आपको सोशल स्टेटस देती है जरूर फैमिली, आपको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल है ना सपोर्ट आपको देती है, राइट। व्हाट एल्स, इनकलकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी, ये सारी चीजें हमें फैमिली सिखाती है। पर सारे आपने पॉजिटिव बता दिए हैं, डिस्कस है ना, तो थोड़ा सा you can also give some of the other negative. There is a possibility to quote a slightly negative impact of the role family plays. इसमें आप ये बता सकते हो कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज पे डिपेंडेंट रहता है, चेंज ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो, यस, ट्रेडिशनली पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है, उससे जो हमारे डिवीजन ऑफ लेबर के रोल सेट हैं वही चलते आते हैं। दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स जो आप इस, देयर इज अ स्कोप इन दिस आंसर टू कोट सिंस द कीवर्ड इज डिस्कस। नेक्स्ट आप कौन से पे आ जाओ, इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन बात कर रहा है, तो इसके पहले ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं करनी थी। अब जब सेकंड पार्ट को आंसर कर रहे हो, अब ग्लोबलाइजेशन की बात करो। शुरू कैसे करोगे इसको, लेट अस डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। सबसे इजी है, किसी भी, आपको भी अगर समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे शुरू करूं, अच्छा कीटा में आपको लग रहा है कि मैं 2-3 सेंटेंसेस में इसको बता सकता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो लिख डालिए, डेफिनेशन से शुरू कर डालिए। ग्लोबलाइजेशन पहले है क्या, पहले ये देखें, फिर देखेंगे कि उसके लाइट में क्या होता है। तो वो कर लिया आपने ग्लोबलाइजेशन। फिर क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक्सप्लेन हाउ। अब इसमें सब पार्ट्स हैं जो आप बता रहे थे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द फैमिलीज इवॉल्व ओवर टाइम। इवॉल्व होना मतलब क्या होता है, चेंज होना, डेवलप होना। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं यार, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए और फंक्शनिंग में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। जब आप ब्रेक करते जाओगे ना क्वेश्चन को, तो आपको खुद को पॉइंट समझ में आते जाएंगे, राइट। अगर क्वेश्चन को एकदम सीधा सीधा ऐसे लोगे कि ऐसे पढ़ लोगे कि ये क्या है, जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स कि यार बैकग्राउंड क्या है, ये क्या है। तो अब क्लियर हो गया। अब 2 पार्ट्स बचे, बताओ स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे क्लियर पॉइंट, जॉइंट फैमिली से हम कहा जा रहे हैं, अच्छा क्यों जा रहे हैं हम, याद रखना, इसमें याद रखना है वी हैव टू आंसर इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को दिमाग में पकड़ के चलना है, बाकी टॉपिक्स दे सकते हो, पर सबसे पहले क्या देना है कि ग्लोबलाइजेशन डायरेक्टली से क्या हुआ है, क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई है, मिली है, अर्बनाइजेशन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। ये जो आपने 3 टर्म्स बोले, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, राइट। एजुकेशन भी बढ़ा है, women have got more educated, they're going out to do jobs. माइग्रेशन हुआ है, रूरल फैमिलीज कहाँ जा रही है, अर्बन एरियाज में। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर हाउस होल्ड हो रहे हैं। और बताओ, और थोड़ा सोचो, ग्लोबलाइजेशन में केवल जॉब्स पे असर नहीं पड़ता है, सोशल वैल्यूज भी चेंज होते हैं।
लाइफस्टाइल ठीक है, और बताओ स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट सोचो। वो पॉइंट डिस्कस कर लिया कि विमेन आर मोर एजुकेटेड, हैव गॉन आउट वगैरह, वो पॉइंट हो गया है। और सोचो, बात करेंगे उस पे, वो भी एक है। स्ट्रक्चर पे फोकस करिए, स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। हेड ऑफ द फैमिली का जो रोल रहता है ना कि डैड विल डिसाइड, वो कहीं ना कहीं दैट इज चेंजिंग। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। अ लॉट ऑफ फैमिलीज आर नाउ डिसाइडिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट मैरिंग, दे आर लिविंग इन live-in relationships. That is in itself is being considered a family. People are getting married, not having children. ये आम नहीं है. This is a evolution that is happening in our families. A lot of households are childless households. A lot of people are single parents. People are going on and adopting children, and they have not married. So these are families, and this is the change in structure. तो इनकी भी बात करनी है ना? Same sex marriages है, तो उनकी भी बात करनी है, उनके भी हाउस होल्ड्स हैं। तो ये चेंज हमने बात कर ली किसकी? स्ट्रक्चर की। अब आ जाओ किस पे? फंक्शनिंग पे। सोचो फंक्शनिंग क्या क्या इवॉल्व हुआ है, पर सोचना ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचना। आगे पॉइंट क्या है? एक्सचेंज ऑफ कल्चर होता है ग्लोबलाइजेशन में, पॉइंट क्या है? और आगे जाओ, अभी जनरल पे हो, थोड़ा और जाओ। एग्जैक्टली सोचो कि ग्लोबलाइजेशन से फैमिली के फंक्शन पे क्या असर पड़ा है? हाँ, वेरी वेरी नाइस पॉइंट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो दादा दादी का ख्याल पेरेंट्स ही रखते थे और जो छोटे बच्चे थे उनके साथ ही रहते थे। अब अगर दादा दादी नहीं है तो क्या हो रहा है? नए इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हो रहे हैं, ओल्ड एज होम बन रहा है। यू नो, दिस इज अ फंक्शन जो है, फंक्शन था कि ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, वो चेंज हो रहा है। और बताओ, और सोचो। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जो आप बात कर रहे थे ना, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि फंक्शनली जो है अलग अलग हमारे जो मेंबर्स हैं, स्पेशली द फीमेल मेंबर, द फीमेल हेड, शी इज ऑल्सो एन इक्वल वो। और बताओ, और क्या फंक्शन में चेंज हुआ है फैमिली के? हाँ, डे केयर सेंटर्स, क्रैशेस, हाँ ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, ग्लोबलाइजेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हो, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, इंडिविजुअल चॉइस बढ़ रही है। पीपल आर मूविंग फ्रॉम अरेंज मैरिजेस टू लव मैरिजेस। इफ समबडी इज डूइंग दैट, आपको नहीं लगता कि आगे के डिसीजंस भी वो इंडिविजुअली लेंगे? तो जो ट्रेडिशनल होल्ड था जॉइंट फैमिलीज का, वो कहीं ना कहीं कम होगा। फंक्शनली जो है डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। करेक्ट? तो अब दीज आर थिंग्स कि यू नो, दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। इट्स ओनली दैट अगर आपने आज ही क्वेश्चन लिख लिया है, 10 दिन बाद जब आप लिखोगे तो इसके साथ आपको एक और कोई पॉइंट याद आता रहेगा। तो द कोर इज अंडरस्टैंड, डिकोड द क्वेश्चन, ट्राई टू पुट इन एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल and practice a lot. ठीक है? That will help you out to write good answers. Thank you. Yes. So coming to case study, first I'll just read, or everybody have read, I suppose. So I'll just jump into the question part. So first question, that is question number A, mention the ethical issues involved in above case study. जैसे मैडम बता रहे थे कि the question word is mention, आपको जस्ट मेंशन करना है, आपको जस्ट उसके मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज फोकस पॉइंट इज एथिकल इश्यूज, ओनली एथिकल इश्यूज को आपको मेंशन करना है, नो डायलेमास एंड नो स्टेक होल्डर्स एंड ऑल, ठीक है। सो कमिंग टू द एथिकल इश्यूज, सो आप जब क्वेश्चन केस स्टडीज में ना, सो दिस इज अ स्मॉल केस स्टडी, मतलब कंटेंट कम है, बट आप जैसे देखे होंगे यूपीएससी में समटाइम्स 1.5 पेज का केस स्टडी रहती है, सो यू कैन नॉट रीड इट अगेन एंड अगेन, सो देन यू विल, इस बार का बहुत लंबे पेपर था, सो ऐसे पेपर्स में यू कैन नॉट रीड अगेन, सो आप पहले रीडिंग में ही
make sure even if you are reading it slowly, so make sure you underline the points which will click in your mind. पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ए क्या है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, उसके बाद आप यू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन सो दैट यू विल नो द रिक्वायरमेंट कि आपको कहाँ फोकस करना है. तो वो फोकस करके आपको अंडरलाइन या मार्क करके रख दीजिएगा. ठीक है. सो नाउ मेंशन द एथिकल इश्यूज. दैट्स व्हाट आई डिड नाउ. सो फर्स्ट वन इज first you should focus that you are a DM, you are a district magistrate, so you are not only collector, you are also a magistrate, you have magisterial powers. So then first ethical issue is illegal mining. So उसमें ethical क्या होता है, illegality is the first one. So illegal mining is the first ethical issues. Second one is work culture. जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो they will explain how police is involved and all. So that is work culture. क्योंकि आप DM हो, law and order comes under you. So it is your duty to maintain the law and order in the district. Work culture के सब parts में interdepartmental coordination, आपको पुलिस के साथ coordination बना करके रखना है. There is division of roles, proper division of roles करना है कि आपको इसमें. Then again duty, law and order, control of law and order, ये सारे आप mention कर सकते हो वहाँ पे ethical issues में. So then negligence they have only mentioned. नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी वो भी एक इश्यू है. देन डैमेज टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज रूरल रोड्स. सो यहाँ पे आपको ये भी दिमाग में रखना है कि रूरल रोड्स आर नॉट मेंट फॉर हेवी ट्रक मूवमेंट. तो एक रोड का अपना कैपेसिटी रहती है, उसका रिस्ट्रिक्शंस रहती है, सो विच हैज बीन मेंशन्ड इन द एक्ट्स. जो भी लॉस रहते हैं उसमें रहते हैं. तो डैमेज टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, विच आर नॉट मेंट फॉर लार्ज ट्रक्स. ठीक है. देन ट्रैफिक इशू, अगेन इट इज अ पब्लिक न्यूसेंस विच इज एन एथिकल इशू. ठीक है. एंड लोकल रेजिडेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोटेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर इशू. देन एक्सीडेंट्स एंड जो भी एक एक्सीडेंट हुआ है, दिस इज द मेन पॉइंट यहाँ पे. या दिस यू कैन मेंशन एंड यू कैन राइट लॉस ऑफ लाइफ और थ्रेट टू लाइफ. सो दिस इज एन इशू. देन ब्यूरोक्रेटिक एंड बिजनेस नेक्सस. ठीक है. Then accusations of corruption on you, मतलब question on integrity, so that is an issue यहाँ पे by the local media. हाँ, local media and वो भी स्टेक होल्डर बन जाते हैं. लोकल मीडिया का जो मैनेजमेंट विल ऑल्सो बिकम एन इश्यू यहाँ पे. ठीक है. सो दीज आर दी एथिकल इश्यूज. एनीथिंग एल्स? हाँ सॉरी. हाँ. सो जब पहली लाइन में जब सैंड आप पढ़ते हो तो आप एनवायरमेंटल डैमेज भी आप सोच सकते हो. लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ भी है. सबसे पहले और फर्स्ट सेकंड में आपका लॉस ऑफ लाइफ आ जाना चाहिए, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के अलावा कुछ नहीं है. तो अगर लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन योर फेस. अगेन लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड ट्वाइस, पुलिस के साथ आपका देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, लॉ एंड ऑर्डर, वो ये दोनों आपका मेन चीज है इसमें. बट अगेन दैट इज एन इश्यू. हाँ. इंटरडिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि एसपी के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं है और आपको लग रहा है कि लोकल पुलिस ऑफिसर के नेक्सस से ही सैंड माइनिंग हो रहा है, मतलब आपका ओवरऑल पुलिस के साथ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं. सो दीस आर द टू मेन पॉइंट्स यहाँ पे. उसके साथ जो भी आपने मेंशन किया, जैसे अगेन एनवायरमेंटल कंसर्न वाज आल्सो इशू. एनी अदर इशू एनीबॉडी हैज नोटिस्ड? दिस इज व्हाट आई कुड थिंक ऑफ. इसके अलावा कोई और कोई सोच सकते हैं? वो हो गया. एनीथिंग एल्स? यहाँ पे मेंशन कुछ है नहीं वैसे. नहीं, आपको सिर्फ इस केस स्टडी में क्या है आप सोच सकते हो. यू कैन मेक अप थिंग्स कि ऐसे हो चुका होगा, वो ऐसे हो रहा होगा, बट यू कैन नॉट राइट इट. What has been mentioned, only that you are writing. So don't make a mistake of thinking something else and writing extra point. ठीक है, just to mention it. And yeah, that again I told local media wala this one. हाँ, media trial. Then yeah. So coming to this is the first part. This is done. You have mentioned everything with giving some context. एक लाइन में ही आपने पूरा खत्म कर लिया.
Then second part is, in the above situation, what are the options available to you? Discuss their merits and demerits and choose the most appropriate one, giving justifications for it. So इसमें जैसे मैडम would have told कि केस स्टडी में what she and even I used to do is, first we used to start with the worst option. So जो भी options है, पहले मेरा worst option start करके लास्ट में best option मेंशन करके, so that you can also correlate कि this is the best option available and ऐसे आप आंसर लिख सकते हो. तो वर्स्ट ऑप्शन क्या है? रेसिग्नेशन इज नॉट द वर्स्ट ऑप्शन. वैसे आई टोल्ड यू शुड नॉट इमेजिन थिंग्स. वैसे इमेजिन करना है तो आप लिख भी सकते हो कि सुसाइड कर लो. तो ऐसे इमेजिन नहीं करना है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है वो ऑप्शंस हमें लिखना है. ठीक है. वर्स्ट ऑप्शन इज, वहां पे वो दे हैव मेंशन्ड हैंड इन ग्लव. सो ठीक है, बन जाओ हैंड इन ग्लव, सारे हम खुश सब खुश. सो और सबका साथ. नहीं प्रोज एंड कॉन्स इसमें कैसे लिखोगे बताओ. आप प्रोज इसमें क्या लिख सकते हैं? प्रोज क्या लिख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में? कोई प्रोज है? अभी जो हमने ऑप्शन बनाया उसमें कोई प्रोज है? कोई एक बार प्रो बता देना है. हाँ, प्रोज इस ऑप्शन के. इफ आई एम हैंडिंग ग्लव, एनी प्रो इज देयर? easily It is the easiest option, easy functioning of the administration. Then there is मतलब लॉ एंड ऑर्डर सॉल्यूशन नहीं बताना है उसको क्या. that is, you can write monetary benefits to the this one, that is the pro. If it is not pro though. याद रखना, पहला ऑप्शन वर्स्ट है तो हाँ. उसके ज्यादा प्रोस नहीं लिखना चाहिए. एक या दो मेंशन कर लो. प्रो होगा, फिर कॉन्स बहुत सारे होंगे पहले, है ना. यहाँ पे फिर सारे एथिकल इशू खोल सकते हो कि कैसे इट गोज अगेंस्ट द इंटेग्रिटी, कैसे इट इज हार्मिंग द, यू नो, आप ध्यान देंगे. अगेन सारे आपका इश्यूज जो आपने मेंशन किया उसमें से बेस्ट निकाल के वो डीमेरिट्स में डाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज द वर्स्ट एंड इफ यू डू दैट मोस्ट ऑफ इट आर डीमेरिट्स. ठीक है. सेकंड ऑप्शन क्या कर सकते हो? सेकंड ऑप्शन कुछ मिडवे रखना है. इट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन व्हिच आल्सो व्हिच इज एथिकली साउंड एंड इट इज नॉट द वर्स्ट आल्सो. इंक्वायरी ऑन द You are already a collector. You cannot ask anybody else. You are the last final authority or not very ideal. See, again, जैसे आप you are partly right. So you can take strict action against the culprits. Or if you feel like your like SP is not doing well, so you can just मतलब or your police personnel are not doing well, so you can taking strict action मतलब suspending them immediately, like ये करना. Then taking action against protesters, political parties के तो शो काज नोटिस दे देना, अरेस्ट करना. देन क्या होगा कि मीडिया ट्रायल में आपको मीडिया विल थिंक कि नाउ ही इज टेकिंग सम एक्शंस, लेकिन कौन क्या है आपका पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन सुधरा क्या? नहीं. एंड दिस इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन. आपने किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को शो कॉज नोटिस दे दिया, लॉन्ग टर्म क्या वो चीज हैंडल होगी उससे? नहीं. इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग. तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्स जो उससे निकाल सकते हो. और फिर फाइनल ऑप्शन आप क्या डेवलप करोगे बताओ? फाइनल ऑप्शन कैन बी अ डिटेल्ड ऑप्शन. इसमें हर स्टेक होल्डर को सोच करके ऑप्शन बनाना. जो भी स्टेक होल्डर आपने दिमाग में सोचे होंगे इस पूरे केस स्टडी में, आपका जो फाइनल ऑप्शन होगा उसमें सारे स्टेक होल्डर के वेलफेयर को सोच करके ऑप्शन बनाइएगा. ठीक है. तो बताओ क्या है फाइनल ऑप्शन? ये उतना समय नहीं रहेगा यार. लोकल लेवल पे हैंडल करना है. यू आर नोबडी टू से कि इसका अगर आप हाई लेवल पे तो आप लो लेवल की चीज कर सकते हो. लो लेवल पे तो यू कैन नॉट से कि हाई लेवल इज फाइल अबाउट द पर्सनल राइवल में फर्स्ट लोग एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे मतलब फैमिली के चिल्ड्रन चले गए. इमीडिएट कंसर्न वेरी करेक्ट. समबडी हैज लॉस्ट देयर लाइव्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, इमीडिएटली आप सबसे पहले उस इशू को हैंडल कर लो. सेकंड, और मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलेंगे कि वो रोड्स का रूरल है, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है. नो.
नहीं, आई विल टेल. ठीक है, लेट अस दिस वन. तो इसमें जैसे मैडम बताया था, फर्स्ट यू हैव टू एड्रेस द एक्सट्रीम इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड. तो उसके बाद टेकिंग all the stakeholders into consideration, that is police, media, political parties, activists, local people through their local bodies, जैसे पंचायत हो गया उनके, taking everybody into मतलब consideration, उनके साथ coordination and cooperation के साथ. So implementing the available legal provisions in a effective manner. So choose your words carefully. इस words में you have covered everything. You have covered all the stakeholders. You have covered the legal provisions को आप implement कर रहे हो. You have covered that you are coordinating with them. You are properly communicating with them, and you are implementing it effectively, which is addressing the whole issue. So ऐसे आप एक, क्योंकि this is a heading, this is the third option. उसमें demerits merits आप लिखोगे. So तब आप demerits में भी 1-2 लिखना है, but कम लिखना है, merits ज्यादा लिखना है. So this is your third option. So उसमें क्योंकि ethically sound हम ले रहे हैं, तो उसमें demerits least ही रखते हैं. हाँ. Maximum और मेरिट्स पे फिर सारे जितने एथिकल इश्यूज लिख दिए उनके मेरिट्स पे फिर बात करते हैं, है ना. ठीक है. थर्ड ऑप्शन में कुछ कमियां लगी किसी को? थर्ड ऑप्शन में आपको वर्ड्स में ही खेलना है. आपका वर्ड्स में सब एवरीथिंग यू शुड बी कवर्ड इन योर, जो भी आप लिख रहे हो उस वर्ड्स में. ठीक है. एंड अगेन कंक्लूजन में यू कैन मेंशन दैट देयर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट का एंड सस्टेनेबल माइनिंग वाला गाइडलाइंस एंड जस्टिस शॉ रिपोर्ट एंड वो सारे करके इसके अकॉर्डिंग. So mining को we should effectively manage mining so that हमारा resources का गलत यूज भी नहीं हो जाओ, at the same time available हो जहाँ चाहिए वहाँ. So this should be your conclusion. Done. Sometimes ऐसे conclusions देते टाइम हम overreaching jurisdiction के बारे में ये कौन भी हो सकता है ना, अगर हम मतलब क्योंकि जैसे हम लोग किसी और डिपार्टमेंट के jurisdiction को का सोच के हम उसके सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे आप डीएमओ, आप पूरा आपके अंडर ही है कल डिस्ट्रिक्ट का. ऑल द डिपार्टमेंट्स आर अंडर. इवन द पुलिस नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर यू. यू आर रेस्पॉन्सिबल. लास्ट ऑप्शन फिक्स. किसका? डीमेरिट क्या है? डीमेरिट में आप लिख सकते हो कि नॉट ऑल पार्टीज माइट कमिंग टू, मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेशन मुश्किल होगा, इट विल टेक टाइम. सो एंड और क्या लिख सकते हो, और एक और लिख दो बस, ज्यादा नहीं. हाँ, एक पे लिख के खत्म कर देना. तो हाँ, मतलब टाइम रिकॉर्ड हो सकता है, ज्यादा लिख सकता है, और उसको काउंटर ये करना है कि दिस इज समथिंग, दिस इज द मोस्ट एथिकली साउंड ऑप्शन. या सो मैक्स 4, मैक्सिमम 4. तो मैम केस स्टडीज में इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होना चाहिए, जैसे कॉन्सेप्ट तो आपको बताया कि थैंक यू. Okay. थैंक यू वन एंड ऑल. Thank you everyone. It was really a wonderful संवाद. आप लोग की तरफ से भी काफी सारी चीजें आई हैं. And on the behalf of entire KSG, I thank you all for participating. I hope आपने लिखा भी है होगा. जिसने नहीं लिखा अभी भी लिख दीजिएगा. It's your life. They said it. And एक चीज याद मैं लास्ट बोलना चाहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ, इसका बहुत जरूरी है. जैसे मैं आपको एक विश्वास की कहानी बताता हूँ, आपने सबने सुना होगा. This story is related to Shushti only. Once in Bhopal, a call came in the KSG office, and they said कि सर Shushti मैम से बात हो सकती है, कोई गुजरात की महिला फोन करके बोल रही है. तो मैंने कहा आपको काम क्या है Shushti मैम से? तो बोले वो मेरे बेटे को एक पाठशाला में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, और मैडम बहुत अच्छा काम करती हैं, और वो हमारे बच्चे को एडमिशन दिला देंगी. तो उनको काफी विश्वास था. मैंने कहा आप गुजरात में हैं, वो मध्य प्रदेश काडर के आईएएस अफसर हैं, आप गुजरात में अपने राजकोट जिले के कलेक्टर से, एसडीएम से चर्चा करें और वहां उसका सुनिश्चित करें. तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि आर्मी के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा था वो से इंटरनेशनल सर्वे, जो काफी सारी ब्यूरोक्रेसी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आर्मी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो जिसपे लोग विश्वास करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी है. तो you are going to participate in that. You have seen the bureaucrats working. Their work is phenomenally well. अभी कम समय हुआ, काम कर रहे हैं ये लोग. इनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए, इनके काम से लीजिए. बहुत से लोग क्या करते हैं ना, you see the tip of the iceberg. There is so much thing
जो नीचे है, जो इनका परसिवेरेंस है, पेशेंस है, इतने सारी चीजें उन्होंने की है, तो उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए। एंड एक शायरी के साथ मैं खत्म करता हूं कि एक कहता है कि इस कदर जला हूं मैं मशक्कत की धूप में कि किसी भी मौसम अब पसीना नहीं आता। तो वर्क हार्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।